Namaste, Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of you. My name is Laksh Molchandani and welcome back to my new video. So, before this topic I had given you lecture on COVID-19. So if you didn't watch that video, so please watch that video. That video is very important for nowadays situation. So thumbnail is on my desktop, link is on description and I button also, so you can watch by these three ways. So today we are going to learn about Indus Valley civilization, which topic is very demanded. So without wasting our time, I am starting this topic because this topic is very interesting. I really enjoyed on researching this topic, so I hope that you will also enjoy it by learning this topic. So Indus Valley civilization, today we are going to learn Indus Valley civilization. This topic you can say that is the part of our CSS. So first of all we have to learn that what a civilization needs for its public, how a civilization have to serve its public. So a civilization works for its public, a civilization work for its public, for example in agriculture and food and construction of building, construction of villages, belief, their customs, public religions, exchange of goods, trade of country, and government, main government, that how government is ruling that state, law, constitutions is very important, and culture is also important. Different cultures are there in different states, education, which is the most important, and etc. So these all things, which things, agriculture, food, construction of villages and cities, beliefs, exchange of goods, government, law, culture, education, and etc. These all things makes a civilization. Means these things are those things which a civilization have to do, which a civilization have to perform in any situation for its public. So now I have one note for you, that today we are going to learn about Indus Valley civilization. So Indus Valley civilization is not all about Mohenjo-daro or Harappa. Remember, okay? There are more ancient cities. You can say that in Indus Valley civilization, many people says that there is also Mohenjo-daro or Harappa. But these are not only in Indus Valley civilization. Indus Valley civilization is very vast, because when you will see the map of Indus Valley civilization, so Kashmir, Sindh, Punjab and Balochistan also. I was not having that much space on my board, so I am telling you Balochistan is also counted in Indus Valley civilization. Means 4 provinces are in Pakistan, which Sindh, Punjab, Balochistan, KPK and Punjab. So one country from Sindh, which is known as Mohenjo-daro. Second country from Punjab, that is Harappa. Third country from Balochistan, so that is Mehergarh. Let's learn that who discovered Indus Valley civilization. Who means Indus Valley civilization kisne dhoondi? Who discovered Indus Valley civilization? The discoverer of Indus Valley civilization is Sir John Marshall, and he discovered Indus Valley civilization in 1920. So remember this, who discovered Indus Valley civilization? Sir John Marshall in 1920. When humans started to leave jungles, I had told you that first in ancient era peoples were living in jungles. In ancient era people were living in jungles, and they were afraid of dinosaurs, because dinosaurs were very dangerous on that time. So I had these things I had told in our history chapter. So if you want to watch that chapter, so you can watch, and on my YouTube channel known as Schoolboy Laksh. So in that chapter I told you that when an asteroid had fallen on the earth, and by that dinosaurs had died and humans had left jungles and living in villages. So this process was also started from here. दिस प्रोसेस ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम हियर. जो हमारे जो पूर्वज थे, जब उन्होंने जंगल छोड़ा और वो जब गांव बसाने उन्होंने शुरू किए, तो ये जो प्रोसेस था ये यहाँ से शुरू हुआ था. दिस प्रोसेस ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम हियर. एंड अदर थिंग इज़ दैट
they were professional engineers. Here I had written professional engineers because they were professional in engineering. They were having the good drainage system, they were having their good electrical power, they were having their means everything in that era was fine. So now let's learn more things. The usage of buffaloes, cows and camels for the transportation was also started from here. As I had told you in my religions, in our beliefs chapter, that peoples were traveling, peoples were using cows, buffaloes and camels for transportation. This process was also started from Indus Valley civilization. So now let's learn that who ruled Indus Valley civilization, because it was very precious, you can say. So first Aryans came here to Indus Valley civilization to rule this area, sorry. So the Aryans came to rule. They gave name called Sindh. So the land means the land which was included in Indus Valley civilization, that land was not having any name on that time. So first of all Aryans came to rule over there and they gave the name as Sindh to this land, and on that time the religion which people were following, that was Buddhism. Okay. Second was Persians. Persians conquered Sindh and gave name as Hind. After Aryans, Persians came to Sindh and they gave the name Hind to Sindh. Understand? And in Mahabharata there is also written about Aryans, that how Aryans entered in Indus civilization and how they gave name as Sindh. So that thing is also written in Mahabharata. After Persians, Greeks came. Who are Greeks? The Alexander the Great, Sikandar Azam. In Urdu we can say Sikandar Azam. So Greeks came after Persians. Alexander the Great also conquered Sindh and give Hind, मीन्स पहले आर्यंस आए इस धरती पे और इस धरती का नाम दिया सिंध. मतलब स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कैसे चेंज हो रही है, स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझना, मैं आपको उर्दू में समझा रहा हूँ. आर्यंस पहले इस धरती पे आए. जब आर्यंस आए इस धरती पे, इस धरती का कोई नाम नहीं था. आर्यंस आए, उन्होंने इस धरती को नाम दिया सिंध, सिंध का नाम दिया. उस टाइम जो रिलीजन फॉलो होता था वो था बुद्धिज़्म. और आर्यंस के बाद कौन आए? पर्शियंस आए. पर्शियंस ने सिंध से हिंद नाम दिया. और महाभारत में भी इसका जिक्र, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र हुआ है कि कैसे आर्यंस जो हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में घुसे और कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो धरती थी उसका नाम सिंध रखा. और पर्शियंस के बाद ग्रीक्स आए. ग्रीक्स कौन? ग्रीक्स अलेक्जेंडर द ग्रेट वाले, सिकंदर आज़म वाले, आपने सुना होगा. जो ग्रीक्स थे उन्होंने सिंध को फतेह किया, उन्होंने सिंध को कॉन्कर किया. उन्होंने हिंद में से पहले नाम सिंध, फिर हिंद, फिर जब जैसे ग्रीक्स आए उन्होंने हिंद से डायरेक्ट इंद नाम दिया. इंद नाम दे के इंद से ही इंडस निकला, इंडस से इंडिया निकला है. मतलब स्टेटमेंट को समझना प्रॉपर है. मतलब स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह समझ लें. पहले सिंध, फिर हिंद, फिर इंद, इंद में से ही इंडस निकला, इंडस में से ही इंडिया निकला. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल सिंध, हिंद, Ind. From Ind the Indus word is derived, from Indus India word is derived. So Alexander the Great means Greeks came and ruled half portion of इसका मतलब ये हुआ, it means that पहले सिंध, हिंद, इंद, इंडस, इंडस से ही इंडिया निकला. So what I was telling? I was telling that when Greeks came to Sindh, so Greeks ruled the half portion of Sindh. Here I had made the map to make you understand easily. Here is the map of Sindh. The half Sindh is ruled by Greeks, and the half portion which is remaining, that is ruled by Maurya Empire. Understand? Means वही मेरी बात कि इसमें स्टेटमेंट चेंज कैसे हुई. आप स्टेटमेंट को समझे. पहले मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट आए, ठीक है, उन्होंने पर्शियंस को डेफीट किया, उन्होंने पर्शियंस को हराकर उन्होंने हिंद से इंद नाम रखा, लेकिन उन्होंने आधी सिंध कॉन्कर की.
मतलब आदि सिंध का नाम इंदु हो गया। इंद से इंडिया निकला, इंद से इंडस निकला, सॉरी इंडस से इंडस निकला, इंडस से इंडिया निकला। सो जो हाफ सिंध बची, सवाल तो ये उठ रहा है कि जब ग्रीक्स ने आधी सिंध कॉन्कर की, जो हाफ सिंध बची वो कहाँ गई, वो मौर्य एम्पायर ने कॉन्कर गई। तो अब हम एम्पायर्स पढ़ लेते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट एम्पायर्स दैट केम टू सिंध टू रूल दैट सिंध। ओके, so after these Greeks, Ashoka Empire came, Afghanis came, Scythians came, Kushans came, Sassanid Empire came, Gupta Empire came, Rai Empire came, Brahmins came, and there's the thing I want to tell you about Brahmins, that is Raja Dair. Do you hear about Raja Dair? Raja Dair was also the part of Brahmins. So during this time, during the जब ब्राह्मण्स का राज चल रहा था सिंध धरती पे, तब पायरेट्स एंटर इन अरेबियन सी। पायरेट्स मतलब समुद्री डाकू जो अरेबियन सी तक पहुँचे। अब जो सऊदी अरबिया का जो ट्रेड होता था ना, द ट्रेड ऑफ सऊदी अरबिया, दैट वाज अटैक्ड बाय पायरेट, मतलब पायरेट्स थे वो उस पर अटैक कर देते थे। अब जो सऊदी अरबिया के जो एम्परर थे उस टाइम पे, उनका नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। उन्होंने अपना एक नेफ्यू भेजा, उन्होंने मतलब राजा डायर से हेल्प ली। राजा डायर डिडंट हेल्प हिम एंड ही सेंड हिज वन नेफ्यू टू राजा डायर टू फाइट विद राजा डायर, बट ही डेफिटेड, वो हार गया। एंड देन ही सेंड हिज एन अदर नेफ्यू विच नेम इज मोहम्मद बिन, हुज नेम इज मोहम्मद बिन कासिम। फिर उसने दूसरा अपना नेफ्यू भेजा जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, राजा डायर से लड़ने के लिए। सो मोहम्मद बिन कासिम वॉज कमिंग फ्रॉम नवाब शाह। राजा डायर जो कि ठट्टे शहर का राजा थे, तो मतलब ठट्टा और नवाब शाह, इन दोनों शहरों के बीच में जो बम्बोर शहर है, यहाँ पे मैंने लिख लिया जो बम्बोर शहर है, डिस्ट्रिक्ट बम्बोर, वहाँ पे इन दोनों की फाइट हुई। एंड Muhammad bin Qasim won that fight. So when Muhammad bin Qasim won that fight, so from that time Islam was spreading in you can say Sindh. So after Brahmins, Islam Sultanate had came. So after Islam, the first Sufi in Sindh who entered Sindh was अब्दुल्ला शाह गाजी, जिसकी मज़ार अभी कराची में है। अब्दुल्ला शाह गाजी वो सूफ़ी थे जिन्होंने सूफीज़म के बारे में बहुत बताया। आपको तो पता है, यू नो दैट सिंध इज़ द लैंड ऑफ सूफीज़म, सिंध इज़ द लैंड ऑफ सेंट्स, यू नो। तो जो पहले सूफ़ी, द फर्स्ट सूफ़ी हु एंटर्ड इन सिंध, दैट इज़ अब्दुल्ला शाह गाजी। आफ्टर अब्दुल्ला शाह गाजी हु केम टू सिंध, गजनविद एम्पायर एंड दाता गंज बख्श, who was the second Sufi who entered in Sindh. So first Sufi is Abdullah Shah Ghazi, second Sufi is Data Ganj Bakhsh. Data Ganj Bakhsh की मज़ार कहाँ पर है? लाहौर में। Okay, his Data Ganj Bakhsh mausoleum is in Lahore. So after Data Ganj Bakhsh, Delhi Sultanate came to rule Sindh. After Delhi Sultanate, Sumro Empire came, Sumro dynasty came, and then third Sufi who entered in Sindh, that was Lal Shehbaz Qalandar. मतलब देखें स्टेटमेंट कैसे चेंज हो रही है। मैं आपको शुरू से छोटा सा डेमो दे देता हूँ। इंडस सिविलाइजेशन पे पहले हमने पढ़ा सिविलाइजेशन को अपनी पब्लिक के लिए क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर, फूड, कंस्ट्रक्शन, बिलीफ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गवर्नमेंट, लॉ, कल्चर, एजुकेशन और एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें देनी चाहिए, ये सारे राइट्स देने चाहिए अपने पब्लिक को। फिर मैंने आपको नोट दिया जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ दे। फिर मैंने आपको मैप बताया कि इंडस सिविलाइजेशन में कौन से सिटीज़ आते हैं, जो कश्मीर, सिंध एंड पंजाब, बलोचिस्तान भी आता है, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। मैंने आपको रीज़न पहले बता दिया। तो उसके बाद इंडस डिस्कवर किसने की, ये भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने आपको पूरा मतलब ये डेमो दे दिया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो थी वो क्या बनाने चाह रहे थे, वो वेपन फ्री सोसाइटी बनाने चाह रहे थे, जिसमें कोई बंदूकें नहीं चलें, बमबारी ना हो, एक मतलब सुकून वाली सोसाइटी हो जिसमें सब लोग सुकून से रहें। तो ये मैंने आपको ये भी बताया था कि वो प्रोफेशनल इंजीनियर्स थे। मैंने आपको ये बताया था जब इंसान ज़ात जंगल छोड़ के घर में मतलब विलेजेस बसाने लगे, तो वो प्रोसेस, वो दैट प्रोसीजर
was started also from here। मैं ये भी आपको बता दिया, मैंने आपको ये भी बताया कि काउस, बफेलोस, कैमल का जो यूज़ था फॉर ट्रांसपोर्टेशन ये भी यहाँ से शुरू हुआ। फिर मैंने आपको जो एम्पायर्स थे उन्होंने कैसे रूल किया मैंने आपको बताया। और रिमेंबर दिस दैट सिंध, फिर हिंद, इंद, एंड इंद से ही इंडस निकला, इंडस से ही इंडिया निकला है। अंडरस्टैंड। जो पहला सूफी था जो सिंध में एंटर हुआ था पहले, फिर मैंने आपको राजा दाहिर की और मोहम्मद बिन कासिम की फ़ाइट बताई थी जो कि बम्बोर शहर में हुई थी। जब जैसे मोहम्मद बिन कासिम जीत गया तो फिर इस्लाम फैलने लगा सिंध में। और उसके बाद जो पहला सूफ़ी था जो सिंध में एंटर हुआ उसका नाम था अब्दुल्ला शाह गाज़ी। दूसरा सूफ़ी था जो सिंध में एंटर हुआ जिसका नाम दादा गंज बख्श। अब्दुल्ला शाह गाज़ी का जो मौज़िम है वो कहाँ पर है? कराची में है। दादा गंज बख्श का जो मौज़िम है वो कहाँ पर है? वो है लाहौर में। उसके बाद मैंने आपको बताया कि तो थर्ड सूफ़ी है जो सिंध में एंटर हुआ लाल शहबाज कलंदर, जिनकी मज़ार है सेवन में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुग़ल जो मंगोल्स थे, मंगोल आए, फिर समा एम्पायर आए, मुग़ल एम्पायर आए, फिर अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई, शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई जो कि चौथे सूफ़ी थे सिंध में जो एंटर हुए थे। वो चौथे सूफ़ी थे जिनका मज़ार है, जिनका मौज़िम है आप कह सकते हैं हाला में, हाला। तो अभी लेट्स सी। तो अब मैंने आपको बताया कि जो चौथे सूफ़ी थे जो सिंध में एंटर हुए उनका नाम था शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई। तो अब ये मैंने बोर्ड की साइड चेंज कर दिया, चेंज द बोर्ड साइड एंड हियर आई हैव रिटन सिंध also give a lot of time to music and that is the only reason of inventing तंबूरा by शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई। और सिंध ने एक बहुत बड़ी अहमियत दी। सिंध हैड गिवन a lot of time as I had written here a lot of time to music और यही सिर्फ एक वजह है तंबूरा बनने की। शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई ने तंबूरा बनाया था तो यही एक वजह है बिकॉज सिंध गेव अ लॉट ऑफ टाइम टू म्यूज़िक। सिंध ने म्यूज़िक को एक बहुत बड़ी अहमियत दी। नीचे लिखा हुआ है यार मोहम्मद कलहोड़ो, नीचे लिखा हुआ है यार मोहम्मद कलहोड़ो। फिर इन्होंने राज किया सिंध पे। उसके बाद सच्चल सरमस्त जो कि 5वें सूफ़ी थे सिंध में एंटर होने वाले, सच्चल सरमस्त। उसके बाद टालपुर्स आए, टालपुर्स ने सिंध पे राज किया। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फोर्ट नोन एज रानीकोट फोर्ट और टालपुरों ने ही ये फोर्ट बनाया, टालपुर्स ने ही फोर्ट बनाया जिस फोर्ट का अभी नाम है रानीकोट फोर्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा किला माना जाता है आज के ज़माने में। So Sir Charles Napier, Britishes won but respected the heroic role of Hosh Muhammad Shidi and after that Sindhis means सिंधियों ने मना कर दी ब्रिटिशर्स का रूल फॉलो करने के लिए, टू फॉलो द ब्रिटिश रूल। सिंधियों ने मना कर दी, सिंधियों ने कहा वी डू नॉट फॉलो द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। सो दैट वाज अ बिग बैटल बिटवीन सिंधीज एंड ब्रिटिशर्स और जिसमें ब्रिटिशर्स जीत गए लेकिन उन्होंने रिस्पेक्ट की हीरोइक रोल होश मोहम्मद शीदी का और उन्होंने उनको बरीड किया इन हैदराबाद। या बाय द वे मैनी डायनेस्टीज रूल इंडस वैली सिविलाइजेशन, सो दैट्स व्हाई देयर ऑल लिविंग थिंग्स were changing but now whole Indus Valley civilization is one community known as Pakistan। तो ये पॉइंट जो है हमारा जो अभी लेक्चर था ना, इस लेक्चर से सबसे ज़्यादा अच्छी जो पॉइंट मुझे लगती है ना वो ये पॉइंट लगती है कि पहले इन एंशिएंट एरा मैनी डिनास्टीज, मैनी कम्युनिटीज, आर्यंस, गुप्ता, गजनविड, ससलिड एंड राय, गुप्ता, अशोका and you can say means many dynasties had ruled Indus civilization but now it is one nation which is known as Pakistan. So now wearing topi and ajrak is not meaning of strong culture but rich culture because when billionaires wear topi and ajraks and when they greet others so they meet them by giving a respect। तो आजकल के ज़माने में जो सिंध सूबे को एक यूनिक सूबा बनाते हैं ना, ऐसी चीज़ जो सिंध सूबे को यूनिक सूबा बनाती है वो चीज़ क्या है? वेयरिंग टोपी अजरक,
सिंधी कल्चरल डे जो कि दिसंबर के फर्स्ट संडे पर आता है, जो सिंध के बिलियनर्स हैं, जब वो भी टोपी अजरक पहनते हैं तो उनकी जो रिस्पेक्ट, उनकी जो हॉस्पिटलिटी जो दूसरों को मिलती है, वो जब ग्रीट करते हैं दूसरों से, वो हाथ जोड़ के ग्रीट करते हैं। यही थिंग सिंध को यही चीज़ सिंध को एक क्या बनाती है, एक यूनिक कल्चर बनाती है। टोपी अजरक पहनना इसका मतलब ये नहीं कि सिंध मजबूत है, सिंध मजबूत है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि सिंध एक यूनिक कल्चर है। सो नाउ लेट्स गो फर्दर। दैट थिंग मेक्स सिंध यूनिक कल्चर, वो मैंने आपको पहले बात बता दी। द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वॉज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। और मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है, जो फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थी वो थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जो कि सिंध से ताल्लुक़ रखती थी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से सिटीज़, मतलब हर सूबे से कौन कौन से सिटीज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे। केपीके से गंधारा और टैक्सीला, पंजाब से हड़प्पा, बलूचिस्तान में मेहरगढ़, सिंध से मोहिंजोदड़ो। अब ये याद रखना, दैट इज़ वेरी मैंडेटरी, फ्रॉम केपीके, गंधारा एंड टैक्सीला। टैक्सीला मैंने आप मेंशन नहीं किया तो आप उसको थोड़ा देख लेना। गंधारा, टैक्सीला, पंजाब से हड़प्पा, बलूचिस्तान से मेहरगढ़, सिंध से मोहिंजोदड़ो। ये जो चार नहीं 5, क्योंकि टैक्सीला भी तो है ना, तो ये 5 जो सिटीज़ है ना, दीज मेक्स द इंडस वैली civilization. And now you all know, I had told you that Indus Valley civilization is a one nation which is known as Pakistan. So here I had made a map of Sindh for you. This is our beautiful motherland, सिंध। ये हमारी प्यारी धरती सिंध, जिससे हमारा बहुत प्यार है, जिससे हमारे बहुत सारे रहस्य, हमारे बहुत सारे रीजन्स जुड़े हुए हैं, हमारे इससे बहुत सारे किस्से पैदाइशी के जुड़े हुए हैं। तो मैं अपनी इस ब्यूटीफुल मदरलैंड को सलाम करता हूँ। सो आई रियली enjoyed to research on this lecture. Guys, this lecture was really awesome. I cannot tell you. I hope that you had also enjoyed. मुझसे जितना हो सका I had given my best to teach you on Indus civilization. अब आपका भी ये बेस्ट बनता है कि आप भी बेस्ट दिखाएं, अच्छी तरह से इसको पढ़ें, समझें। और if you like my this video, so please like, share, comment and subscribe to my channel. And if you want to watch my more videos like this, so press the bell icon also. So now stay home, stay safe. Thanks.